स्टूडेंट्स, आज हम आर के नारायण के बारे में बात करेंगे. ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द पीडीएफ ऑफ द गाइड विद यू एंड आई होप कि आपने वो पीडीएफ यानी कि वो जो नॉवल है उसे एक बार रीड कर लिया होगा, है ना. एटलीस्ट एक बार तो आपने उसे पढ़ लिया होगा. Okay, so before going to the novel, we should, as we always do, we should just read some of the character of the novelist. Okay, some biography or writing style and all those things that we discuss. We should discuss first about R.K. Narayan. Okay, so yes, the guide, it is written by R.K. Narayan. ठीक है, आर के नारायण ने लिखा. और जब हम आर के नारायण की बात करते हैं तो आर के नारायण ही इज़ एन इंडियन राइटर. ओके, and he is an Indian writer who used to write in English, and he was you can say a leading writer of early English literature of English. You can say early writing or whatever writing which happens in English after independence. Okay, or during independence, we can say he belongs to basically the Tyro. Okay, it was the time of 1900s. Okay, when we discuss the you can say the history of Indian writing in English, so yes, we majorly refers to the works of the writers, okay, which wrote in English, and it was the time of British rule. ओके, तो जिस टाइम पे आर के नारायण थे एंड जिस टाइम पे उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, सो वी बेसिकली हैव नॉट अटेन्ड अवर इंडिपेंडेंस येट. ओके, तो ये जो राइटर थे, ओके, जब राजा राव ने लिखना आर के नारायण ने लिखना स्टार्ट किया, तो ये जो लिटरेरी सीन था उस समय का, यानी कि जो राइटिंग्स थी, जो मेजर राइटिंग्स किया करते थे, वो 3 लोग करते थे. ठीक है, 3 राइटर्स थे अपार्ट फ्रॉम आर के नारायण. दिस टायरो, they were Raja Rao and Mulk Raj Anand. So he was very famous writer of that time. Okay, 1900s, after 1930s. All right, so yes, these are the 3 writers, okay, who basically define the area in which the English novel was to operate. Okay, ये वो टाइम था जब ये लोग लिखा करते थे. Okay, so yes, so we will talk about R.K. Narayan. So he basically belong from Rashipuram. Okay, Rashipuram is a village in Madras. Okay, it is a village in Madras, and his mother tongue, it was Tamil. Okay, but when we talk about Mysore, okay, so Mysore, the regional language of Mysore is Kannada. Getting it? But his mother tongue is Tamil, but he used to write in English. All right, so yeah, he has his graduation, he got his graduation in 1930 from Maharaja College, Mysore. All right, he graduated from Maharaja College. See, this is an interesting fact about him, that he failed in high school. Okay, and he also failed in intermediate examination. So this failure, this has this adverse effect on his personality. Okay, and he, when we see his career, okay, he started working as a clerk, and later he accepted the work of teacher in his village life. But he is very fond of reading different type of books and listening stories. Okay, when he started working as a clerk, he was not satisfied with the work, because he find it rather boring. Why he found that because he wanted to be a writer. Okay, and though he can write in English, but he has this emotional link with his motherland. So yes, he started writing for newspaper and magazine. Okay, so in 1935 he married this beautiful girl Ranjam. Okay, so yes, and after the marriage, his career, it ran on a high speed. Okay, it was the time when he was in his high peak of the career, and he started writing in 1935 with Swami and a friend. It was the most, you can say, the famous
it is a sort of autobiographical trilogy. Okay, Swami and the Friends, The Bachelor of Art, and The English Teacher. Okay, so this fictional town of Malgudi, okay, he has created a fictional town. The name of this town was Malgudi. So this fictional town, it was first introduced in Swami and the Friend. Okay, so we should be we should know that what Malgudi is. Malgudi is basically a fictional town. उसकी लोकेशन भी आके नारायण ने दी है. लोकेशन इसकी कहाँ है? इट इज़ इन साउथ इंडिया. Okay, and he has included this fictional town in his novels and its short stories. ओके तो ये सेटिंग की तरह वर्क करता है. ठीक है, इनके किसी भी नॉवेल्स में या शॉर्ट स्टोरीज जब आप देखेंगे तो ये जो यू कैन से ये जो मालगुडी है, मालगुडी एक सेटिंग की तरह काम करता है. ये जो बैकग्राउंड है, जो प्लेस है, वो क्या है? मालगुडी है. ओके, तो ये जो मालगुडी वाला एरिया है, हम ये कह सकते हैं कि ये साउथ इंडिया में ही लोकेटेड है. ओके, क्योंकि जितनी भी इन्होंने पोर्ट्रेल दिया है मालगुडी का, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है मालगुडी डेज में, तो ये उस टाइम की बात है. ठीक है, 19th सेंचुरी की बात है, व्हेन द फ्यू विलेजेस दे वर डेवलपिंग, और नई नई जो रेल वहाँ पे आई थी, नई रोड्स बनी हुई थी, रेलवे ट्रैक्स बने हुए थे, एंड ऑल दोज थिंग्स. उन सब चीज़ों का जो एक छोटे छोटे से विलेज हैं साउथ इंडिया के, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो सारा जो डिपिक्शन है उन्होंने बहुत ही क्लियर वे पे इन्होंने किया हुआ है. ऑलराइट, सो यस, कुछ इसकी जो इनकी जो राइटिंग्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं. स्वामी एंड द फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड होना चाहिए. 1935 द बैचलर ऑफ आर्ट, 1937 द डार्क रूम, मालगुडी डेज, ये बहुत फेमस है मालगुडी डेज. ओके, My Dateless Diary, this is an autobiography. Man Eater of Malgudi, and many more. Okay, many more. बहुत सारे हैं. Talkative Men भी बहुत famous है, and all those. Okay, तो बहुत सारे इनके जो writing कह सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे novels, बहुत सारी short stories, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई थी, है ना. बहुत ही simple and commonplace कॉमन सी जो इन्होंने अपनी सेटिंग है रखी हुई है. लैंग्वेज भी इसी तरीके की है. ठीक है, कुछ इनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण, डी लिटरेचर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स. ही अवॉर्डेड बेंसन मेडल, मैनी मोर. ओके, ही हैज़ lots and lots of achievement. He has awarded lots and lots of awards in his life. Okay, so yes, when we talk about the writing style, ठीक है, राइटिंग स्टाइल की जब हम बात करेंगे तो राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सिंपल है और रियलिस्टिक है. गेटिंग इट? ओके, you can say he very much enjoyed phrasing in English. Okay, but जो बेसिक आइडिया उसकी स्टोरी का है वो तमिल में ही है. ओके, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्टाइल, द सिंपल एंड रियलिस्टिक स्टाइल जिस पे वो लिखा करते थे. बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है या ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज़ करी है जो आपको समझ नहीं आ रही. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्लॉट है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक राइटिंग जो है उनकी लगती हैं. एंड येस, द स्टोरीज, दीज नॉवेल्स, दे आर फुल ऑफ ह्यूमर. ओके, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है और बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है एट द सेम टाइम, एंड ही हैज़ यूटिलाइज दिस बोथ दी थिंग्स. ओके, आयरनी एंड ह्यूमर दोनों को मिक्स करके ये लिखते हैं, एंड इट इज़ हिज आयरनी दैट मेक द सिचुएशन ह्यूमरस. ओके, और लैंग्वेज की जब हम बात करें तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड द लैंग्वेज इज़ ऑफ कॉमन पीपल. ऐसे ज़्यादा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करी हुई है. ओके, लैंग्वेज हैज़ द सिंप्लिसिटी. ओके, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी जो है लैंग्वेज की है, एंड ही यूज वेरी पॉपुलर तमिल एंड हिंदी वर्ड्स. ओके, यू मस्ट हैव रेड, इफ़ यू हैव रेड द नॉवल, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स जो हिंदी में हैं या तमिल में हैं. ऐसे कई सारी वर्ड्स आपने इसमें देखे होंगे. और जब हम स्टाइल की बात करें तो इट इज़ वेरी एवोकेटिव और सजेस्टिव. ओके, इट्स वेरी एवोकेटिव, सजेस्टिव जो है स्टाइल इनकी राइटिंग का है.
and yes, he has this spirit of Indianness. Okay, although he's writing in English, but he has the spirit of Indianness. Okay, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि डिस्क्राइब द नॉवेल्स ऑफ if R.K. Narayan has the spirit of Indianness in his knowledge in his novels. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. ओके, तो इंडियननेस जो है इनके जो नॉवेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. ओके, पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, समझ लो ना इंडियननेस का क्या मतलब है, कि जितनी भी जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी चारों ओर हो रहा है, इंडियंस किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, ऑल दोज एक्सप्रेशंस, ठीक है, दैट इंडियन सेंसिबिलिटी, इन्वायरमेंट, सिंबल, कल्चर, हर चीज़ जो है इन्होंने अपने नॉवेल्स में इन्वॉल्व करी है. ठीक है, तो गाइड में भी आपको छांट छांट के लिखना है कि कहाँ पे वो इंडियननेस आपको दिखाई देती है, कैसे डिपिक्ट होती है. चाहे हम ये देखें कि लोग कितने इजीली फूल बन जाते हैं. ओके, किस तरीके से कार्नेशन राजू का हुआ था एज अ सेंट, है ना, कितने भोले यहाँ के लोग होते हैं. ऑल दोस इन दीज कॉमन थिंग्स, कॉमन जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे ट्रेडिशंस को लेके हो, ठीक है, या फिर आप आप इंडियननेस इसमें भी ढूंढ सकते हैं हमारी क्लोथिंग में, कि किस तरीके के क्लोथिंग उन्होंने करे हुए थे. द टिपिकल साउथ इंडियन वुमेन्स की कई सारी क्लोथिंग वहाँ पे डिपिक्ट होती है, डिस्प्ले उनकी राइटिंग में दिखती हैं. और जब आप रोज़ी का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो रोज़ी के पहनावे को भी आप देख सकते हैं कि ही वॉज टिपिकल वुमेन. ओके, ऐसी नहीं थी कि उसने अपने बालों को शॉर्ट करवाया हुआ था या ऐसे नहीं. शी वॉज टिपिकल इंडियन वुमेन. ओके, मतलब उसका जो ड्रेसअप था इट वॉज टिपिकल इंडियन, साउथ इंडियन वुमेन. ओके, दिस लॉन्ग हेयर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, द वे शी यूज टू ड्रेस अप. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडियननेस को डिपिक्ट करती हैं. ओके, so yes, so it basically when we talk about guide, it offers more comprehensive picture of the region, okay, and its society. कई सारे नॉवेल्स में आर के नारायण ने ये चीज़ डिपिक्ट करी है, बट गाइड में इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर. ठीक है, कल्चर को, रीजन को, इन सबको डिस्प्ले करने के लिए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मालगुडी, सी दीज इवेंट्स, ऑल दीज इवेंट्स इन द गाइड्स, ये जो है सारा जो सेटिंग है वो मालगुडी में ही है. ठीक है, चाहे हम राजू की बात करें कि राजू किस तरीके से एक छोटा सा शॉपकीपर जो था, उसके फादर थे, धीरे धीरे उन्होंने बुक स्टोर ही खोल लिया एंड ऑल दोज थिंग्स. फिर राजू किस तरीके से गाइड बना. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस नॉवल में देखेंगे. ठीक है, एंड येस, मोर स्पेसिफिक थिंग इज़ दैट आर के नारायण एक जॉनर से बिलोंग करते थे, एंड दैट इज़ रीजनल नॉवलिस्ट. ठीक है, आर के नारायण को आप रीजनल नॉवलिस्ट कह सकते हैं. आप देखो रीजनल नॉवल किसे कहते हैं, तो रीजनल नॉवल बेसिकली क्या है, एक जॉनर ऑफ फिक्शन है जिसे कहाँ पे सेट किया जाता है. ठीक है, यानी कि जो प्लेस है वो प्लेस कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है, भले ही वो प्लेस जो है वो इमेजिनरी है, बट सेट इसे इस तरीके से करा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल रीज़न बन जाता है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज उसके जो फीचर हैं. ठीक है, जब आप बात करें कि इनके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो फीचर्स यही हो सकते हैं कि इट डिस्टिंग्विश द लाइफ, द सोशल रिलेशन, कस्टम्स, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें जो स्पेसिफिक एरिया के लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक कल्चर जो है डिपिक्ट कराता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों का, तो ये उस एरिया को डिफाइन करता है या उनकी लाइफ को डिस्प्ले करता है. ठीक है, तो राइटर्स बेसिकली क्या कर लेते हैं, एक इमेजिनरी या फिक्शनल एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं या फिक्शनल प्लेस को बना लेते हैं और उनमें अपनी जो नॉवेल्स हैं उसमें इनको यूज़ करते हैं. तो आर के नारायण की मालगुडी डेज़ आपने सुनी भी होगी, बल्कि जिस टाइम पे ये केबल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिर्फ दूरदर्शन होता था, तो दूरदर्शन में तो मालगुडी डेज़ एक पूरा सीरियल आता था, एंड इट्स लाइक वेरी फनी. इट हैज़ दिस इवेंट्स गोइंग ऑन डेली, डे टू डे इवेंट्स, जस्ट लाइक तारक मेहता, दैट इज़ ऑल्सो दिस इमेजिनरी प्लेस समवेयर. ओके, तो जहाँ पे एक सोसाइटी है और वहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, तो इट इज़ द सॉर्ट ऑफ फिक्शनल डेमोग्राफी और टोपोग्राफी यू कैन से. ओके, सो येस,
So the regional culture, it is also used to illustrate an aspect of life in general or the effect of environment on the people living in it. Okay, तो ये चीज़ें आप कई सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रीजनल नॉवल की, आप इस द गाइड में आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो। ओके, सो यस, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें कि रीजनल नॉवल के क्या कैरेक्टर होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इट डिस्क्राइब ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, सेटिंग और रीज़न। ठीक है, और ये जो रीज़न होते हैं यूजुअली ये रूरल होते हैं। ठीक है, विलेजेस की भी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेटली रियल प्लेस की तरह ये दिखाई देते हैं। और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली किसके होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं। ठीक है, और जो डायलॉग्स होंगे ये बड़े रियल टाइप के आपको लगेंगे डायलॉग्स। ओके, देयर इज़ नो आर्टिफिशियलिटी इन द लैंग्वेज, द वे द कॉमन पीपल यूज टू स्पीक रीजनल नॉवेल्स में उसी तरीके के डायलॉग्स आपको मिलेंगे। तो एक लोकल कलर आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स में, डायलेक्ट में, कस्टम्स में, हिस्ट्री में, तो एक लोकल कलर आपको इन सब चीज़ों में मिलेगा। ओके, तो यस, ये इसका कुछ राइटिंग स्टाइल है। आप राइटिंग स्टाइल एक पॉइंट ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, किसी भी राइटर के बारे में आप लिख रहे हैं, चाहे वो पोएट है, चाहे वो एसेइस्ट है, चाहे वो नॉवलिस्ट है। ठीक है, आप राइटिंग स्टाइल ज़रूर लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा से मैंने आप लोगों को कहा है इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन के बाद आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को पॉइंट्स बना के करिए, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर राइटिंग स्टाइल का होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इनको हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम गाइड के बारे में बात कर लेते हैं आज। बस हम नॉवल जो है अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर हो गया है। ठीक है, तो गाइड की अगर हम बात करें तो गाइड 1958 में लिखा है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मालगुडी। ठीक है, मालगुडी क्या है ये हम आगे डिस्क्राइब कर चुके हैं। इट इज़ अ फिक्शनल टाउन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, एंड गाइड ने 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द गाइड। ठीक है, 1960 में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द गाइड। Alright, so this was some of the biographies, achievement and so writing style of R.K. Narayan. We are going to start the novel from tomorrow. Alright.